Okay. So I was sitting with uh, Imran Khan Saab in back in the day, 2016, uh, on Tuscany rooftop, and I was really depressed and sad because the things were not right spiritually and morally in my life to some extent. I had chosen another path, and my parents wanted me to do something else, and I was between the struggles of acquiring the skill and the will. एंड बिल का तो आपको पता है हर वक्त बंदा सोच ही रहा सोच ही होता रहा है होता है। सोच ही रहा होता है तो आई मेट मिस्टर इमरान खान एंड द थिंग आई वाज लैकिंग इन लाइफ वाज let me tell you the biggest gift that we have is namaz. And I met Imran Khan and he was like देखो तुम जिंदगी में जो मर्जी करो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात समझ लेना कि तुमने कभी नमाज नहीं छोड़नी। तो मेरी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था। अब जब भी मैं नमाज के लिए जाता हूँ, उस वक़्त भी जाता था, तो मेरे बैक ऑफ माइंड में ये एको कर रही होती है इमरान खान की बात कि देखो तुमने कभी नमाज नहीं छोड़ी। So I believe namaz has given me the spiritual boost, which has still helped me keep going apart from all the struggles that I have been facing. Alhamdulillah, God has been kind over the way and along the way. और ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि नमाज has shaped my life in a different manner. और I would like to thank Imran Khan sahab because he is such a great guy and he doesn't give up. So I think आजकल तो हो सकता है सेंसर करना पड़ जाए इमरान खान का लफ्ज़ ही। नहीं 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 नहीं, his personality, maybe he's not a good politician, maybe he's not good for Pakistan, but himself, the skill, the will and the bill, इस आइडियोलॉजी की अगर आप इमरान खान के ऊपर बुक लिखेंगे या आई थिंक ही इज़ द देखेंगे, परफेक्ट he is a एग्जांपल ऑफ दैट। perfect example for it. बिल्कुल He ऐसे ही wanted ऐसे to ही। become the prime minister, he became the prime minister. He had the skill, he acquired the skill, हाँ he हाँ, used his will will and God eventually paid his paid bill। his bill, स्टार्ट किया था तो आई थिंक किसी ने भी कोई believe नहीं किया बिलीव था उस नहीं पे। किया था कि इमरान Yes. खान भी कुछ सियासत So कर you सकता don't है। have to be qualified enough to reach the top. You just have to have the faith and the willpower. You'll reach the top. बट फिर आपको विल भी तो इमरान खान जितनी चाहिए ना, हाँ कि बंदा 20 साल स्ट्रगल भी कर ले और उसके बाद कह रहा कोई मसला नहीं है। हाँ, absolutely, I agree. इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और इस जर्नी में अब जिस मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब का एग्जांपल ले लेते हैं। इमरान खान ऑब्वियसली हैड अ विजन इन हिज माइंड और वो उसने उस पर एक्सटेंसिवली 20-22 साल काम किया। उसके बाद जाके उसको कोई रिजल्ट्स नज़र आए। इस दौरान भी इमरान खान इज़ अ मैन ऑफ फिनोमिनल विल, जो सीधी सी बात है। वो चैलेंजेस आते हैं तो ही जस्ट मूविंग फॉरवर्ड विदाउट थिंकिंग कि यार लाइफ में क्या है क्या नहीं है। हाउ डज वन डेवलप सच अ विल के यार डाउट्स आते हैं, फियर्स आते हैं लाइफ में, उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाए? सबसे पहले आई बिलीव कि इट्स अबाउट अगेन द मेन बूस्ट इज़ द विल पावर along with the fuel of spirituality, and it's about legacy. You need to find if your purpose is bigger enough. You need to be selflessly selfish. Everybody is selfish. Everybody wants their goodness. Everybody wants their wealth. Everybody wants their money to be secured. हर बंदा अपने लिए काम करता है। आपने लोगों के लिए क्या काम किया है? मैंने लोगों के लिए क्या काम किया है? या हमारे साथ जो लोग बैठे हैं वो हाउ हैव आई इम्पैक्टेड योर लाइफ? So that's legacy. Imran Khan is legacy. Imran Khan, I'm not if you give his example, I'm not focusing on his political or whatever the tensions are, but the point is his legacy. Even if he dies today, he is going to live forever in the memories of Pakistan and the cricket all around the world, right? ऐसे ही है। So because he has impacted with the purpose, and he is sitting right now for the purpose. Whoever is serving the purpose, I think God helps him to have the willpower to break the shackles, create the magic, and conquer the world. So that unwavering, undoubted faith, belief, and the purpose behind. नहीं, आपने ये एक बात को समझना है कि पर्पस जितना स्ट्रांग होगा ना, बाकी एक्सटर्नल चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली आपको फेवर करने लग जाएंगी। अगर आपका पर्पस इज़ फॉर द गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, लाइक द ग्रेट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर, he had the greatest purpose to save the humanity, के हेल फायर से बचा के हेवन में लेके जाना है लोगों को। ऐसे ही है। दैट वाज हिज पर्पस, और वो पूरी उम्मत के लिए दुआ करते थे। आज तो हमें सिर्फ अपनी पड़ी हुई होती है कि यार हम आईफोन ले लें, हम गाड़ी ले लें, हम ये ले लें, हम वो ले लें, हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ जाएं। तो जितना बड़ा आपका पर्पस होगा, उतने बड़े आपका इम्पैक्ट होगा, उतने बड़ी आपकी लेगेसी होगी, उतने बड़े आपके इंस्टीट्यूशंस होंगे, उतने स्ट्रॉन्ग आपके एजुकेशन सिस्टम होंगे। क्योंकि आज हमारा निसाब ही ख़राब है।
आज हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है, फ्लॉड है, सारा फ्लॉड है। वी आर नॉट चेजिंग एनी पर्पस। आप आज ग्रेड 1 से लेके मैट्रिक, ए लेवल्स, एफएससी, यूनिवर्सिटीज़ तक चले जाएं, नो बडी सर्विंग द पर्पस। क्या पर्पस है ही नहीं कोई। क्या पर्पस है? डिग्रियां ले लो, मुल्क छोड़ के चले जाओ। हाउ कैन यू लीव पाकिस्तान? दिस इज़ योर कंट्री। डिग्रियां लेके मुल्क छोड़ के क्यों जाना है आपने? डिग्रियां लेके आपने इधर बैठना है। सर्व द पर्पस, सर्व फॉर द ह्यूमैनिटी। पाकिस्तान को एक पाकिस्तान से बड़ा अजीम मुल्क कोई नहीं है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना। ऐसे ही। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर कोई मुल्क खड़ा होता है तो उसका कभी जवाल नहीं आ सकता, क्योंकि वो दे बिलीव इन गॉड। हमारा कभी जवाल नहीं आएगा पाकिस्तान का। सिर्फ इसलिए हमारा जवाल आएगा क्योंकि हमारा कोई पर्पस नहीं है। वी लैक पर्पस। और जो हमारी सोसाइटी का सोशल कैरेक्टर है ना, वहाँ से पर्पस छीन लिया गया। पर्पस सिर्फ मॉनिटरी कर दिया गया। पर्पस सिर्फ मटीरियलिस्टिक कर दिया गया। पर्पस का सब्सटेंस ख़त्म कर दिया गया। अब पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट ये है कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे, मेरी वजह से पीपल थिंक दे आर सक्सेसफुल। ये एम्पावरमेंट है कि इफ़ यू आर सिटिंग विद मी अली भाई, यू फील एम्पावर्ड, यू फील के दे विल गो ग्लोबल, विल गो वर्ल्ड वाइड। मिस्टर बीस्ट क्या पता हमारे पॉडकास्ट पे कल आ जाए। होपफुली इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, या ऐसे ही। Mr. Shabazz Sharif can, call upon us on the podcast. शहबाज शरीफ साहब तो इंशाल्लाह ज़रूर कभी। Inshallah, very very soon, and he's a very nice guy. So मैं चाहता हूँ कि इस तरह की हम चीज़ें करते रहें जो कि इम्पैक्ट करें। इफ़ वी कैन इम्पैक्ट पीपल अली भाई, आई थिंक हम ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे। और अपने से निकल के सोचें यार, हर बंदा आज ना अपना सोचता है। हम अपने से निकल के जिस दिन सोचेंगे उस दिन डिवाइन इक्वेशन, डिवाइन हेल्प हमारे इर्द गिर्द ऐसे आएगी जैसे यू विल नॉट एक्सपेक्ट, नेवर एवर। ये जो इतने बड़े बड़े लोग बने हैं ना, इन्होंने जब अपने से निकल के सोचा है तब ये इन्होंने ग्रेटनेस हासिल की है। खाना तो एंड में आपने या तो एक बर्गर या तो एक रोटी है, सीधी जो बात है। इतनी दौलत इकट्ठी करके क्या करना है? लेकिन सर्व द पर्पस, एम्पावर अदर्स, लोगों के लिए जीना सीखें। आज अपने लिए तो हर बंदा जीता है, किसी और के लिए जीना मुश्किल है। कोशिश करें।